Hello and welcome back to the channel Fake Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. Well, guys, in the previous video lesson, since the video was getting longer, I had stopped here only and I gave you this question as a homework to do. I believe quite some of you must have tried that, and I don't know how many of you have tried that, but those who have tried it, if you have got the answer, let me know, or else we're gonna work out together and we're gonna do this together और यहीं से हम लोग आगे बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? So yes, that video was getting longer. That's the reason why I stopped there. तो चलिए हम लोग इसको साथ में करते हैं and few more questions will be on the way after this question and we shall finish this kinematics advanced lesson and we're gonna move on to the one more topic, another topic, and mains and advanced from that topic would be covered here. ऑल गुड बच्चों, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था जी? तो द सिचुएशन वाज गिवन कि वी हैड एन a moving plank which is moving at an acceleration of 1.5 meter per second square at time t is equals to 0. This is at rest. All good. And at the same time when it started, this object was projected from here with a velocity u. Let us say this angle is theta. Well, this wasn't given in the question. मान लो कि this is theta at which it was projected with initial velocity of u, and while coming it hits this block at an angle of 45 degree with the horizontal, means this angle is 45 degree. This was the question and you have to find two things. Point number one was find the value of time t naught, because at time t is equals to t naught this object was hitting this block which is moving at an acceleration of 1.5 meter per second square at a height of 1.25 meter, and at time t is equals to 0 its horizontal coordinate was 3,0. ये क्वेश्चन था and I believe आपको बहुत टाइम मिल चुका है to solve this question from the previous video to this video. तो चलिए साथ में इसको करते हैं, ठीक है बच्चों? ओके, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कब पूछा गया था? जेई 2000 में पूछा गया था, एडवांस में ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2000 में, ठीक है जी? ओके, तो समझते हैं कि हम टाइम को कैसे निकालें. देखो, 45 डिग्री है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो इन्फॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हम लोग इसको मस्त अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है? देखते हैं इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा बच्चों, लेट मी यूज द रेड मार्कर, दिस शुड बी u cos theta and the vertical is going to be u sin theta, and horizontal as we all know will remain same, so here also we'll have u cos theta, and as I know this angle which is over here is 45 degree, because this angle is 45, तो same horizontal line पे जो angle होगा while going and while coming should be both equal. अपने को बात बेसिक पता है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको अच्छे से डिस्कस कर रखा है. तो whatever component we have over here the same should be here. तो बोल सकते हैं क्या, this also is nothing but u cos theta. Likewise प्यारे बच्चों, अगर इसको हम v मान लेते हैं, velocity v है, पर ठीक है जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि I know that u cos theta horizontal will remain same. यहाँ भी u cos theta होगा and since this angle is 45 degree, तो भैया ये कंपोनेंट होगा ना बच्चों, that also is going to be u cos theta. आपको इसको मानने का जरूरत एक्चुअली में नहीं है, पर ठीक है जस्ट फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने इसको v मान रखा है. अगर ये v है तो दिस ऑल्सो हैज टू बी v, क्योंकि सेम लेवल पे वर्टिकल आपको जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, है ना, सेम लेवल पे. तो मान लो ऐसे, well that's not actually necessary over here. What I can feel, what I can say from here is, हमने कुछ इक्वेशन तो बनाने होंगे ना जी, क्योंकि आपको निकालना क्या है, टाइम टी नॉट निकालना है और कुछ भी रिलेशन दे नहीं रखा है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट की हाइट 1 पॉइंट, अच्छा हाइट दे रखा है ना. चलिए इससे तो काम बन जाएगा जी. पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है कितना, वो 1.25 मीटर है ना जी. तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u कितना है जी वर्टिकल में, u sin थीटा है ना, u sin थीटा. और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी देखें, well that is u cos थीटा, वो भी नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है ना जी, दैट इज योर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी. तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g t स्क्वायर. तो चलिए ये हो गया t स्क्वायर. t टाइम मान लो, टाइम t पे वो इसको हिट करता है व्हिच इज गिवन एज t नॉट, हम उसको बाद में देख लेंगे ना. तो g का वैल्यू मान लो, g का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगा यहां से u sin थीटा t
एंड माइनस ऑफ 5t स्क्वायर बच्चों, तो ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, आप 5t स्क्वायर है ना। चलिए ठीक है, तो इसको ऐसे u साइन थीटा, थीटा वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा जी 1.25 प्लस 5t स्क्वायर, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है जी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और भी देखना है वेरिएबल्स कितने हैं, एक थीटा वेरिएबल है, एक टी वेरिएबल है, और यू का भी वैल्यू मेरे पास कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो क्योंकि उसका वैल्यू मेरे को निकालना, वी हैव टू फिगर आउट दैट वैल्यू। अच्छी बात है। और क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और इक्वेशन बना सकते हैं बच्चों, फाइनल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी, और इनिशियल क्या है, u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम यूज कर सकते हैं ना v इज इक्वल टू u प्लस एटी फॉर्म को यूज कर सकते हैं। इस केस में वर्टिकल में तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ u cos थीटा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड u sin थीटा, दैट इज गोना बी u sin ऑफ थीटा माइनस ऑफ g, और g का वैल्यू रख लो डायरेक्टली 10 रख लो है ना, t स्क्वायर, करेक्ट है जी। तो आपको मिल जाएगा इसको इस तरफ, इसको इस तरह, तो u sin ऑफ थीटा प्लस u cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, सही है ना, कोई दिक्कत, 10t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ जी हाफ। अच्छा मैंने t स्क्वायर क्यों लिख दिया भैया, ये सिंपल ना, यू नो 80 है, ठीक है, gt हो जाएगा और स्क्वायर नहीं होगा जी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, v इज इक्वल टू प्लस 80 हो गया। अच्छा एक चीज और है ना, हॉरिजॉन्टल में देखो, इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये 3,0 है, and I'm sure you know this t is nothing but the time when it strikes, when it hits the object। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, इस t टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना हो जाएगा 3 प्लस a वाला डिस्टेंस, और दिस डिस्टेंस वी कैन फाइंड इजीली फ्रॉम इसका मोशन से, ऑब्जेक्ट का मोशन से बच्चों है ना। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड है, तो अगर हम इसको x नॉट मान लें या फिर x नॉट मान लें, चलो मान लेते हैं x नॉट, क्या दिक्कत है ना, तो x नॉट कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है, a हो गया आपका 1.5 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इट मीन्स अगर हम यहां से इस पूरे डिस्टेंस को देख लें, x मान लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा जी, ये जो x आपका है, x हो गया u cos थीटा इंटू टी, तो u cos ऑफ थीटा इंटू टी शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू 3, ये हो गया 3 प्लस जो x नॉट है विच इज 1.5 टी स्क्वायर, प्यारे बच्चों है ना, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अच्छी बात है। नाउ दैट वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, वी कैन इजीली सॉल्व इट आउट, हम इसको मजे में सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट है ना। ओके, अब ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों कि यहाँ पे u sin थीटा है, u cos थीटा है, हियर वी हैव u sin थीटा टाइम्स t, और यहाँ पे क्या है u sin cos थीटा t है ना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, इसको t t t, अच्छा एक काम करो, लेट्स मल्टीप्लाई विथ t, t से मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, तो काम बन सकता है ना, एक cos एक sin, यहाँ पे दोनों है, दोनों को वैल्यू यहां से पुट कर देंगे उसमें, तो हमारा काम बन सकता है ना जी। एक काम करो ना, इसको t से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, लेट्स मल्टीप्लाई दिस विथ t, और दैट्स गोना गिव यू व्हाट, u sin ऑफ थीटा, u sin थीटा t प्लस u cos ऑफ थीटा t इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट कर दो, u sin थीटा t यहां से मिल जाएगा, दैट्स गोना बी हाउ मच 1.25 प्लस 5t स्क्वायर, दैट्स गोना बी 1.25 प्लस 5t स्क्वायर प्लस u cos थीटा, u cos थीटा इज गोना बी हाउ मच 3 प्लस 1.5 t स्क्वायर इज गोना बी हाउ मच 10t स्क्वायर, सही है ना। अच्छी बात है। सो नाउ वी हैव इक्वेशन इन t, हम यहां से t का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5t स्क्वायर प्लस 1.5t स्क्वायर, 6.5 उस तरफ गया तो कितना हो जाएगा जी 6.5 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है क्या, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, और ठीक तो है, तो 3.25 आ रहा है, और यहाँ पे 1.5t, हम ओके ओके, सब कुछ तो सही दिख रहा है जी, 1.5t स्क्वायर और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सही है, ये भी सही है, तो कुछ तो गड़बड़ नहीं दिख रहा मेरे को है ना, चेक कर लो एक बार जी आप लोग भी, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, नहीं सब कुछ सही लग रहा है ना जी, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, सही तो दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ खास पंगे वाला बात मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके चलो फिर तो कंटिन्यू करते हैं, 5 प्लस 1 6, 6.5 तो कितना हो गया उस तरफ, आपको मिल जाएगा 4.5 टी स्क्वायर
शुड बी 4.25। वैल्यू थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मेरे को, ये वैल्यू थोड़ा सा वियर्ड तो लग रहा है, बिकॉज अगर ऐसा वैल्यू होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा डाउट लग रहा है ना। देख लेते हैं कुछ। x इज इक्वल टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके 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 ओके, यहाँ पे हाफ होगा ना जी, ये हो जाएगा बच्चों हाफ। हमने यहाँ गलत कर दिया है ना, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ए हो जाएगा, सही बात है ना, ये हमारा सही बात हो जाएगा। तो ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि काफी वियर्ड था। 4.5 है ना, ऐसे आंसर्स बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.75 राइट, 5.75 माइनस 10 4, हाँ अब देखो सही आ रहा है ना, तो दैट्स गोना बी 4.25 टी स्क्वायर इज गोना बी 4.25। कितना अच्छा वैल्यू आ रहा है जी। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो माइनस तो होगा नहीं, तो टाइम टेकन फॉर दिस ऑल थिंग इज गोना बी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले का आंसर आ गया अपने को, दैट इज t नॉट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। प्यारे बच्चों ये हो गया करेक्ट, फिनिश्ड हो गया ना। समझ में आ रहा है ना। सेकंड पार्ट को देखते हैं कि हमारा पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। अब तो मुश्किल है ना, u का कंपोनेंट क्या हो गया, u शुड बी व्हाट, ये चलो u तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड तो बड़ा आसान है जी। u इज वेक्टर फॉर्म में लिख दे इसको हम, u इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा i कैप प्लस u sin ऑफ थीटा j कैप, है ना जी। और u cos थीटा कहां से मिल जाएगा, देखो यहां से मिल जाएगा ना, कहां गया u cos थीटा, किधर है जी, u cos, हाँ यहां से मिल जाएगा ना। From here we can get the value of u cos theta। t is equals to 1 second, t put कर दोगे 1 तो क्या होगा 3 plus 1.5 upon 2 that is 3.75। t 1 है तो 1 square will be 1, तो 3.75 u cos theta is going to be 3.75 i cap, और u sin theta t 1 है 5 plus 1.5 6.25, that's going to be 6.25 j cap is the value of your वेलोसिटी u। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको सॉल्व कर लो। 3.75 का होल स्क्वायर प्लस 6.25 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ u, है ना। तो आई बिलीव आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, उतना मुश्किल नहीं है। तो दिस वाज आस्क्ड इन जेईई 2000। ऑल गुड बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव आपको सबको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा ना। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन जेईई 2014, एडवांस में पूछा गया था, हम थोड़ा उसका चर्चा कर लेते हैं, है ना। और उसमें वही फिर से मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स पे एक सवाल पूछा गया था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें हमेशा सवाल आपको मिल जाएंगे जब भी आएंगे, तो व्हेनेवर इट कम्स इट शुड बी फ्रॉम दैट सेगमेंट, और आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने उसमें काफी डिटेल में आपको समझाया है काइनेमेटिक्स के क्लासेस में, आप उसको ध्यान से देखो। और फिर मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर दिए हैं जो कि मेंस और एडवांस में पूछे गए थे। तो एक हमारा एक और क्वेश्चन है, पूछा गया था जेईई 2014 एडवांस में ना, जेईई एडवांस 2014, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमने अभी तक 4 क्वेश्चंस कर रखा है ना, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसमें क्या दे रखा था कि 2 प्लेन्स वे फ्लाइंग, 2 प्लेन्स थे वो उड़ रहा था, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था जी बच्चों, ठीक है, ऐसा सिचुएशन दे रखा था आपके जेईई वाले में क्वेश्चंस में, टिक 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 टिक। सो वन प्लेन इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री बना रहा था, है ना, विद द हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे एक हमारा फ्लाइट है जी, ठीक है, ये हमारा फ्लाइट है, चलो ठीक है बन गया, ठीक है, ऐसा जो भी है ना फ्लाइट। और द अनदर फ्लाइट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और ऐसे कुछ जा रहा है। तो इसका भी यहाँ पे कुछ हमारा एक ऐसा फ्लाइट है, ये 60 डिग्री बना रखा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लाइट हो गया जी। ओके, सो द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लाइट इज गिवन एज 100√3 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज 500 मीटर, ठीक है। तो इसको फ्लाइट क्या मान लोगे, मान लो दिस इज फ्लाइट ए, दिस इज फ्लाइट बी। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 500 मीटर दे रखा बच्चों, ठीक है, दैट इज गिवन एज 500 मीटर दे रखा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन एज 100.3 मीटर पर सेकेंड,
or the angle between them is 30 degree and this is making 60 degree. If one of the passenger from the flight A looks at the flight B, उसको लगता है कि velocity of B is perpendicular to the line of movement of flight A. मतलब कि अगर एक यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, उसने देखा इसको, तो उसको लग रहा है कि ये फ्लाइट जो बी है वो इससे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो फ्लाइट ए ऑब्जर्वर है, he feels that this flight B is moving at a right angle to the path of the flight of A. इतनी बात समझ में आ रही है? Which means it is the velocity of B with respect to A that is making it 90 degree with the motion of this flight A. अब बात समझ रहे हो? पूछा जा रहा है कि and it is said that कि ये फ्लाइट बस जस्ट मिस करता है बिफोर टकराने से थोड़ा सा मिस करता है। आई मीन लाइक इट इज अबाउट टू कोलाइड बट वो निकल जाता है, ठीक है। इट अबाउट टू कोलाइड बट निकल जाता है। आपको पूछा जा रहा है कि कितने टाइम पे वो सिचुएशन होगा, इन हाउ मच टाइम दिस फ्लाइट बी वाज अबाउट टू कोलाइड फ्लाइट ए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको टाइम का वैल्यू पूछा जा रहा है जी। ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। तो आई बिलीव आपको ये बातें समझ में आ रही है ना। तो दिस वाज अ फ्लाइट बी, फ्लाइट ए, and they are at a distance of 500 meter, and the observer from flight A feels that the B is moving in the direction perpendicular to the path of this flight A, and the flight B was about to hit the plane A, just about to hit the plane A, and it happened at any time t. Find the value of that time t. बस यही क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको बहुत मजे में इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, कहीं मैं इस पॉइंट को ए मान लूं, ऐसे कर इसी को एक्सिस मान लेते हैं। दो तरीके से मैं आपको समझा के दिखाता हूं, ठीक है। अगर इसी को हम एक्सिस मान लें, इस लाइन को एक्सिस मान लेते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखना, अगर उस रेड लाइन को एक्सिस मान लें तो ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज योर ए और ये आपका हो जाएगा बी। उस पॉइंट पे मान लो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 500 मीटर है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। और ये भाई साहब जो हैं वो 30 डिग्री पे जा रहे हैं, दिस इज गोइंग एट 30 डिग्री। चलो जी बन जाओ, ये आपका हो गया, ये हमारा फ्लाइट ए का जो ट्रेजेक्टरी है व्हिच इज मेकिंग अलग 30 डिग्री, ये आपका वेलोसिटी हो गया। और ये जो बी है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये हमारा बी है। इसका वेलोसिटी मान लो वी, पता नहीं है बट मान लो वी, ठीक है जी। दिस इज गिवन एज हाउ मच 100√3 दे रखा है। इतना बात समझ लो आप कि अगर इसका वेलोसिटी b का विथ रिस्पेक्ट टू a अगर परपेंडिकुलर है, सो लेट्स मेक b a एट रेस्ट, a को रेस्ट पे कर दो। इट मींस द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a शुड बी इन दिस डायरेक्शन बच्चों। एंड टू डू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट यू हैव टू स्प्लिट दिस वेलोसिटी इन टू पार्ट्स। एक तो हमारा इसका वर्टिकल जाएगा और एक हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100√3 cos 30, cos 30 is 1/2, cos 30 कितना √3/2 होता है ना, √3/2 तो 50 और टाइम्स 3 150 हो गया जी। दिस इज गोना बी 150 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ये कितना हो गया, cos 30 sin 30 1/2 50√3, ये आपका हो गया 50√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। और आप ध्यान से इसका देखोगे तो इसका एक वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो एक तो हमारा इस तरफ हो गया v cos 60 दैट इज v/2, और एक हो गया v sin 30 दैट इज √3/2v। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में, इट इज सेड दैट द वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज परपेंडिकुलर, राइट। इट मींस इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो खत्म। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट। There is no parallel component of the velocity because the entire velocity of b with respect to a that is observed from the observer a has to be this way. तो अगर आप इससे ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्वियसली आपको रूल पता है, इसको इस पे इंपोज कर दो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज गोना बी हाउ मच 50√3। एंड सिंस पैरेलल में वेलोसिटी वेलोसिटी पैरेलल शुड बी 0, व्हिच मींस कैन आई से दैट बच्चों v अपॉन √3v/2, चलो जी हट जाओ, √3v/2 should be equals to how much 50√3, which means the value of v should be how much 100 मीटर पर सेकंड, प्यारे बच्चे, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है जी। अच्छा, ये अगर मेरे को मिल जाता है तो नेट वेलोसिटी अलोंग द एक्स तो निकाल सकते हैं ना जी, नेट वेलोसिटी अलोंग द एक्स निकाल सकते हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लो, बड़ा आसान है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख लो, वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट्स गोना बी ए वाला वेलोसिटी जो कि इसको ऑपोजिट में इंपोज करेंगे 150 और ये -v/2 है ना, तो 150 vx मान लो
और वी परपेंडिकुलर बोल लो आप, परपेंडिकुलर बोलना अच्छी बात रहेगा ना, परपेंडिकुलर 150 माइनस वी अपॉन 2, वी का वैल्यू कितना है 100, 100 बाई 250, 150 माइनस 50 इज 100, दैट्स गोना बी 100 मीटर पर सेकंड बच्चों। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, तो टाइम कितना हो गया बच्चों, टाइम शुड बी, बड़ा मजे में तो बन गया है ना, टाइम शुड बी 500 अपॉन ये जो हमारा 100 हो गया which means 5 seconds। oh ho means that implies that कि भैया time taken for this all circumstances, this all phenomenon is going to be 5 seconds। हो गया ना, कितना आसान था, क्या बात बोलते हो, इजी है ना बच्चों। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है हाउ टू सुपर इम्पोज द वेलोसिटी, कहां पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में इंपोज करना है, और कब पैरेलल कंपोनेंट जीरो होगा, कब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होगा, if you are well aware of these two facts, I'm sure you'll be able to get these questions like boom, you know, easily कर पाओगे बच्चों, ठीक है। अच्छा एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका देखो, जैसा कि डायग्राम जेई में दे रखा था, ऐसा डायग्राम दे रखा था, हम यहां से भी करना चाहें तो मजे में कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखो, हम ना इसको भी यूज करके आराम से कर सकते हैं, कोई बिग नॉट अ बिग डील। ध्यान से देखो, आप इसको समझो ऐसे कि इसके पैरेलल में जो वेलोसिटी होगा ना वो जीरो होगा जी, है ना। तो मैं इसको यहां ड्रॉ कर लूं, शायद आई थिंक दैट्स गोना गो आउट। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री है ना जी, और ये हमारा बच्चों 60 डिग्री हो गया। मान लेते हैं इसको, थोड़ा पैरेलल दिख रहा है क्या, बेवकूफ टाइप है ना, या चलो ऐसे है ना। 30 जी, ये हो गया 30, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, 30 इज मोर रेलिवेंट, अच्छा दिख रहा है। और ये हमारा हो गया 60, ठीक है जी, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, अच्छी बात है। वेल दिस इज गिवन एज हाउ मच, 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और इसको मान लो v, इसको मान लो v। आपको क्या करना है कि इसके जो पैरेलल कंपोनेंट को जीरो कर देना है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखना, ये 60 है, प्लेन यहां पे, और ये भाई साहब का प्लेन यहां पे ऐसे प्लेन, अरे भाई ये बड़ा मुश्किल काम है ना, ठीक है, ये हो है ना, ये प्लेन हमारा यहाँ पे, ठीक है, मान लो इसको। और ये भाई साहब जो प्लेन यहाँ पे, उसको ऐसे मान लो, यहाँ प्लेन है, टिक 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 टिक, ये एंगल 60 डिग्री है। इसके पैरेलल में जो कंपोनेंट बनेगा बच्चों, वो हो जाएगा कुछ ऐसे, दिख रहा है ना, पैरेलल दिख रहा है ना, पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल, ठीक है। ये टोटल 60 है और ये 30 डिग्री है, दिस लाइन पैरेलल है तो 30 डिग्री हो जाएगा, व्हिच मींस दिस एंगल हैज टू बी 30 डिग्री, ठीक है जी। और हमारा वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लाइट भी है v, उसको मान लो v मान लो, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हो कि, और ये परपेंडिकुलर टिक 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 ऐसा कुछ है ना, हाँ सही है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। well this is the velocity of v b with respect to a, ठीक है। तो v का एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30 डिग्री, और इस तरफ हो जाएगा बच्चों v sin of 30 डिग्री, ठीक है जी। v cos 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू दिस, तभी तो जाके उसका पैरेलल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा बच्चों। तो सेकंड मेथड हम कर रहे हैं, तो दैट शुड बी हाउ मच, v cos 30 व्हिच इज v√3 अपॉन 2 शुड बी 100√3, और इस केस में क्या हो जाएगा v जो हो जाएगा टिक 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 200 मीटर पर सेकेंड। तो प्लीज डू नॉट गेट इंटरप्रेटेड, डोंट यू नो मिक्स दिस v एंड दैट v, ये हमारा डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिया और इसको ऐसे लिया, तो थोड़ा सा दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो प्लीज इसको आप ना ऐसे मत करना कि सर यहाँ पे v 100 आ रहा है, वहां पे v 200 आ रहा है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, हमारा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, दोनों का तरीका अलग है, दोनों का जो वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चन वो अलग है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है बच्चों, ठीक है। दिस इज v इज 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v sin 30 कितना हो गया, v sin 30 should be 1/2 100 मीटर पर सेकेंड है ना, which is the velocity in this way। और ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 500 मीटर, ठीक है बच्चों। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 500 अपॉन 100, ये तो और भी आसान है जी। तो टाइम टेकन टू जस्ट मिस द फ्लाइट ए फ्रॉम हिटिंग फ्लाइट बी, भैया होगा हमारा t = 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो मुश्किल नहीं है, आई बिलीव आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, आप इसको अच्छे से समझ रहे होगे। तो आपने देखा होगा रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, मिनिमम अप्रोच मिनिमम डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आप इसको ढंग से समझ लो तो काइनेमेटिक्स तो ठीक है, एडवांस के लिए काइनेमेटिक्स आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आई बिलीव आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। तो दिस इज नॉट जस्ट कि हम PYQ कर रहे हैं, वी आर आल्सो डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट्स। इस कॉन्सेप्ट्स को समझो कि ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, डेटा चेंज कर सकता है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दे कैन चेंज, बट कॉन्सेप्ट के साथ वो लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे आप उसको आराम से बना सकते हो, ठीक है।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जेई 1998 में पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चन वो भी है। आप इंक्लाइन प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल है उस पे पूछा गया था, तो देख लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या था ना, सिचुएशन वाज कि एक हमारा इंक्लाइन प्लेन पे एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, वो थीटा डिग्री पे है और इसमें एक बहुत लंबा सा काट रखा हुआ है विच इज मूविंग फ्रीली, फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, एक बहुत बड़ा सा काट, इट्स लाइक ह्यूज काट, इट्स अ ह्यूज काट, काफी हेवी काट है, ह्यूज है। ठीक है, तो इनसाइड दिस काट वन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ अल्फा, अल्फा पे प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम द पॉइंट पी और कहीं पॉइंट क्यू पे इसको टच करता है वापस, एंड इट इज नॉट स्ट्राइकिंग दिस टॉप एज और द साइड एज और द लेफ्ट साइड एज, वो ऐसे जाकर टिक 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 और ऐसे क्यू पे हिट करता है। ठीक है, इट हिट्स ऑन द क्यू। आपसे पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस होगा पी क्यू वो कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू लेंथ, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का था बच्चों, वो बोला गया है कि इफ एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग दीज इंटायर थिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, he finds that the object hits back to the same point, वो खुद को उसी पॉइंट पे वापस से हिट करता है। आप समझ रहे हो, अगर क्योंकि इट इज मूविंग है ना, दिस इज गोना मूव राइट, ये तो मूव करेगा विद सर्टेन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, जी साइन थीटा से वो मूव कर रहा होगा, सो द एक्सेलरेशन फॉर दिस इज गोना बी जी साइन थीटा बिकॉज दिस इज नो फ्रिक्शन राइट, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो मूविंग दिस वे राइट, क्योंकि वो मूव कर रहा है और ये जो ट्रॉली है, जो कार्ट है, उसके अंदर इस पॉइंट को पी को थ्रो करा गया है, तो ऊपर गया और वापस से उसी पॉइंट पे हिट कर रहा है राइट। तो पूछा गया कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, फाइंड वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, फाइंड v, इसका मान लो v है। ठीक है, फाइंड v फॉर विच it hits back at the same point, for an observer standing on the ground, for an observer in ground frame है ना, ग्राउंड फ्रेम से कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको दिखता है कि वापस से उसी पॉइंट पे हिट कर गया है। आप समझ रहे हो ना, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये समझ लो आप कि यहाँ पे ना वेक्टर का अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि दिस इज इंक्लाइन प्लेन है, एक एंगल अल्फा दे रखा है और यहाँ पर रिलेटिव मोशन का, और दे रखा है कि इट इज थ्रोन विद द वेलोसिटी, और क्वेश्चन में क्या था, अच्छा u दे रखा है इसका, सॉरी नो, इसका वेलोसिटी दे रखा है u विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ दैट ट्रॉली, यू नो, u is given as, u is the velocity, इसको पार्टिकल बोल लेते हैं जी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, इसको बॉक्स बोल लो, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स दे रखा था क्वेश्चन में, यस, सो दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स। ठीक है जी, आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है, फॉर विच इट सीम्स दैट, या फिर u ही पूछा जा रहा है, फाइंड u फॉर विच an observer from the ground frame finds it's hitting back at the same point, वापस उसी पॉइंट को उसको हिट कर रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को थोड़ा, है ना, इतनी बात तो समझ लो आप, इस पे ना एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा इंक्लाइन प्लेन पे, है ना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में इट्स नॉट द हॉरिजॉन्टल वन की जी वर्टिकली डाउनराइट करेगा, है ना, तो इस पॉइंट को पहले आप ऑब्जर्व कर लो, पॉइंट पी को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, टिक 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 टिक, है ना, ये हमारा पी मान लो यहाँ पे, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा बच्चों, आप उसको, इसको एक्सेलरेशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले, ठीक है। एक तो हो गया उस पे जी साइन थीटा डाउनवर्ड और एक जी कॉस थीटा होगा इस तरफ, है ना, क्योंकि अगर इस पे जी एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक तो हो जाएगा जी, क्योंकि एंगल थीटा है, ये थीटा है ना, तो जी कॉस थीटा इस तरफ हो जाएगा और हमारा जी साइन थीटा इस तरफ हो जाएगा। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, काफी है ना श्रिंक कर गया, ठीक है, एक दूसरे में, है ना, ऐसे हो गया, तो जी साइन थीटा अलोंग द प्लेन है और जी कॉस थीटा आपका वर्टिकल टू द प्लेन इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको रेंज ऐसे ही मान ले और ऐसे टिक 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 ऐसे गया, है ना, ऐसे मान लेते हैं, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, तो रेंज तो निकालने की मुश्किल काम नहीं है ना। रेंज क्या हो जाएगा इसका, रेंज इज गोना बी u स्क्वायर
साइन 2 थीटा, तो थीटा यहां पे थीटा क्या है जी, अल्फा है ना, क्योंकि अल्फा दे रखा है। साइन 2 अल्फा अपॉन जी, जी क्या है, जी कॉस थीटा। ये भैया तो बड़ा सिंपल है ना। तो जो लेंथ ऑफ पी क्यू होगा ना वो तो बड़ा सिंपल है, पी क्यू इज गोइंग टू बी दिस। कोई दिक्कत बच्चों? ये बड़ा आसान था है ना, बड़ा सिंपल है। तो और तो कुछ है नहीं इसमें है ना, क्योंकि एंगल अल्फा है और थीटा ग्राउंड के साथ है। एंगल अल्फा इंडिविजुअली दे रखा है, तो इसको हम मान लेंगे तुम्हारा एक्स और इसको मान लेंगे वाई। तो ये तुम्हारा सिंपल हो गया जी, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बड़ा सिंपल हो गया आपका, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। चलिए अच्छा बात है, कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है, यू भी दे रखा था कि विथ वेलोसिटी यू दे रखा है। हा ओके, वी हैव टू स्लाइटली केयरफुल ओवर हियर। एक काम कर देना, पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स अगर हम देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही होना चाहिए एक्चुअली, फिर देख लेते हैं, चेक कर लेते ना जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल with respect to ground, particle with respect to box plus with respect to ground। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा बॉक्स का भी देख लो, बॉक्स का तो दिख रहा ना, जी साइन थीटा डाउनवर्ड है। ठीक है, तो पार्टिकल का ब्लॉक के साथ, पार्टिकल का ब्लॉक के साथ ये वाला हो गया ना, माइनस ऑफ जी साइन थीटा, माइनस ऑफ जी साइन थीटा आई कैप और जी कॉस थीटा जे कैप प्लस जी कॉस ऑफ थीटा जे कैप, क्योंकि आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो ना, ये सारा थ्योरी आपको बता रखा है मैंने, आप इसको टिक 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 इसको वाई मान लो। ठीक है जी, ये माइनस हो गया ना, माइनस हो गया। ठीक है जी, और ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया आपका, हो गया माइनस जी साइन थीटा। करेक्ट है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा तो सही है, तो ये हो गया आपका पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना जी। अच्छा ये ग्राउंड के साथ, अच्छा ब्लॉक के साथ देखोगे ना आप, पूरा गड़बड़ कर दिया हमने ना, क्योंकि इसको हम लोग ब्लॉक के साथ देखेंगे ना, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो पार्टिकल सही तो है, इसी को कर लो ना जी। पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा आपका, बम 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 माइनस ऑफ जी साइन ऑफ थीटा आई कैप माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ थीटा जे कैप माइनस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो माइनस ऑफ जी साइन थीटा आई कैप है ना, तो माइनस ऑफ जी साइन थीटा आई कैप, ये सही दिख रहा है ना, एक करेक्ट है, क्योंकि दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और हमको चाहिए क्या, विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक चाहिए है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम और ब्लॉक के रिस्पेक्ट में चाहिए मेरे को। तो भैया ये तो कट जाएगा ना, हाँ तो सही तो आ रहा है ना, सही तो है। तो पार्टिकल ब्लॉक के साथ कितना हो गया, माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ थीटा जे कैप, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, इफ आई जस्ट लुक एट द मैग्नीट्यूड दैट्स गोना बी जी ऑफ कॉस थीटा, बहुत सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही था, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 से इज दैट फाइंड यू, अच्छा ताकि ना इसमें देखा जा रहा है कि ब्लॉक जो है वो कम्स बैक टू द सेम प्लेस, वो खुद ही गिरता, मींस हॉरिजॉन्टल जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, वो वेलोसिटी है वो जीरो होना चाहिए, तभी तो वो वापस से फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा देन इट इज नॉट गोना कम बैक टू द सेम प्लेस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो इट डज नॉट हैव एनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट्स द रीजन व्हाई इट कम्स बैक टू द सेम प्लेस, राइट। वो द सेम थिंग शुड बी हियर, इसके पास में कुछ दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पार्ट बी कर लेते हैं, इधर ही कर ले ना, पार्ट बी कर लेते हैं बच्चों। इसका वेलोसिटी जो यू दे रखा है ना, यू ऐसे दे रखा है, तो एक तो हो जाएगा ये वाला वेलोसिटी, इधर ही कर ले आप, ये हो जाएगा थीटा ना, ये भी थीटा हो गया, तो आपका हो जाएगा u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, है ना जी बच्चों। और वर्टिकल में क्या हो जाएगा, u साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, u साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इसका कैंसिल होना चाहिए किसके साथ, ब्लॉक के साथ। तो ब्लॉक का हम देखते हैं, तो ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी होगा एक हमारा इस तरफ और एक हो जाएगा इस तरफ। ठीक है जी, और u cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा जो हमारा है वो इसके हॉरिजॉन्टल से आपको कैंसिल आउट कर जाना चाहिए। ठीक है जी, तो सेकेंड पार्ट जो पूछ रहा है कि फाइंड u फॉर विच
यू नहीं हो गया ना। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग था। दैट सेज दैट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉक्स with respect to or along the you know along the plane along the plane, है ना। ये पूछ रहा था, this was the question, find the velocity of the block along the plane for which this particle looks like it's falling vertically downward, वो पूछ रहा, that was the question बच्चे, ठीक है। तो ठीक है, इसको मान लो कि वेलोसिटी इसका v है, this is the velocity v। तो अगर ये v है और ये थीटा है तो obviously this is going to be theta, this means this is going to be v cos theta। and I just told you कि horizontal component 0 होना चाहिए, which means can I say that v cos of theta should be equals to u cos of alpha plus theta, which means the velocity v should be u cos of alpha plus theta प्यारे बच्चों upon cos of theta। ये हमारा आंसर होना चाहिए। well that's the answer for the second part। yes, the question was misread by me। क्वेश्चन था कि उस ब्लॉक का वेलोसिटी निकालना है, इस बॉक्स का वेलोसिटी निकालना है along the plane for which it hits back the same point, ठीक है। तो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर द काइनेमेटिक्स, बहुत हमने इसमें कर लिया है काइनेमेटिक्स में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। let's catch up in the next video lesson। till then keep studying and keep learning। also do not forget to like, share and subscribe, and also hit the bell icon for you can get the all the notifications of the latest video that I upload over here। अलगू बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then keep learning and keep studying। take care, bye everyone।